ఉన్నటువంటిగా ఖబ్రస్థాన్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఖబ్రస్థాన్ కోసం మీరు ఇక్కడ మీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఒక ఖబ్రస్థాన్ ముస్లిమ్స్ కి అలాట్ చేసినట్టుంది. కానీ ఆ వర్క్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదని చాలా మంది అల్లాపూర్ డివిజన్ కి చెందిన ముస్లిమ్స్ లో బాధపడుతున్నారు. దానికోసం మీ అభిప్రాయం? అదే నేను ముస్లిం సోదరులు అడుగుతున్నదే సార్. మరి అలా ఆ గ్రేవ్ గార్డ్ ని అఫీషియల్ గా ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలా వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళకు చెత్తదానికి ఇచ్చేశారు, అఫీషియల్ లెటర్ ఇచ్చారు, సిల్ట్కి అని అఫీషియల్ లెటర్ ఇచ్చారు. నేనేమో గ్రేవ్ గార్డు ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డు గల నేను పోరాడితే ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక వాళ్ళు ఇలా ఇది సిల్ట్ వేయాలి అని చెప్పి ఇంత పబ్లిక్ లో ఇప్పటికే వాసన చచ్చిపోతుంటే ఆ కుకుడుపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ సేలింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ చెత్త తీసుకొచ్చి ఆడ వేస్తే పొదలేని రోగాల పరిస్థితి ఏంటి? అందుగురించే ఎవడు వచ్చినా ఎవడు చేసినా ఏం చేసినా ఆడ ముస్లిం గాడు ఇస్తాం, ఇయ్యకపోతే మేము నిరాదీక్ష చేసైనా ముస్లిం న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎంత పోరాటమైనా చేస్తాము, ముస్లింల కోసం ఆ ల్యాండ్ లో ఖబ్రస్థాన్ వచ్చేటట్టు చేస్తాను అంటున్నారు మాధరం కృష్ణారావు గారు. మళ్ళీ నిన్న అక్కడ బండి రమేష్ గారు వచ్చి ఆ గోడ ఎవరైతే ఎక్కడైతే కూలిపోయిందో ఆ ఫ్యామిలీ పరామర్శించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ రోజు ఏదైతే జూబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలోని బోరబండ డివిజన్ ప్రజలు బాధపడుతున్నారు, అదే ప్రాబ్లం అల్లాపూర్ డివిజన్ ప్రజలు రాబోయే రోజుల్లో బాధపడకూడదు అంటే ఇమీడియట్ గా ఆ ఖబ్రస్థాన్ కి ల్యాండ్ కేటాయించాలన్నదే నా కోరిక. బండి రమేష్ గారు మరియు కృష్ణారావు గారు ఏదైతే ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ బోరబండ డివిజన్ మన పక్కన డివిజనే, మనకు ఆనుకొని ఉన్న డివిజన్ హైదరాబాద్ జిల్లాలో వస్తుంది, మనం మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో వస్తాము. ఈ రోజు వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు. అదే బాధ మేము పడొద్దు, ఇది గత 5-7 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. నేను అంటున్నది ఏమంటే రాబోయే రోజుల్లో అల్లాపూర్ డివిజన్ కూకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు మీరిద్దరు అనుకుంటే అది జిహెచ్ఎంసీకి మీరు కోరి ఆ స్టిల్ట్ కి కాకుండా ఒకవేళ కేటాయించి ఉంటే ఆ స్టిల్ట్ కి కాకుండా ఆ ఖబ్రస్థాన్ కి కేటాయించవచ్చు. డైరెక్ట్ మీకు చెప్తున్నా, మీరిద్దరు కలిస్తే అల్లాపూర్ డివిజన్ ప్రజలందరూ మీతో ఉంటారు, ముస్లిం ప్రజలందరూ మీతో ఉంటారు. అల్లాపూర్ కుకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే ఒక సెక్యులర్ కాన్స్టిట్యున్సీ. మీరిద్దరు కోరుకుంటే తప్పకుండా ఈ ఖబ్రస్థాన్ అనేది అల్లాపూర్ డివిజన్ ప్రజలకు వస్తుంది. ఈ కబ్జా గురి కాకుండా ఇది అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తే ఈ ల్యాండ్ ఖబ్రస్థాన్ కు చెందినదే, ఈ ల్యాండ్ ఖబ్రస్థాన్ కి ఇస్తున్నాం అని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసి మళ్ళా దీనికి ఎలక్షన్ వచ్చే వరకు ఆపి ఎలక్షన్ జిమ్మికుగా డివిజన్ ఎలక్షన్, కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ కానివ్వండి, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు కానివ్వండి కాకుండా ఇది ఇమీడియట్ గా అనౌన్స్ చేస్తే బాగుంటుందని కోరిక, నా ఆశ, నా విన్నపం కూడా. దీనికి రాజకీయ కోణంగా తీసుకోకుండా ఒక రిలీజియన్ కి మీరు ఖబ్రస్థాన్ ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తే అది మీకు మంచి జరుగుతుంది రాబోయే రోజుల్లో అని ఆలోచించి నేను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ ఒక్క ఖబ్రస్థాన్ ల్యాండ్ ని కబ్జా కాకుండా ఖబ్రస్థాన్ కే కేటాయించాలనేది J24 న్యూస్ కోరిక. ప్రజల్ని మభ్య పెట్టకుండా డైవర్ట్ చేయకుండా చేస్తారని, ఆ ఖబ్రస్థాన్ స్థలం ఇప్పటికైనా వస్తుందని, అల్లాపూర్ డివిజన్ లో ఖబ్రస్థాన్ స్థలం లేదని చాలా మంది బాధపడుతున్న ముస్లిం ప్రజలు అది కూడా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. और 18 में भी वो लैंड एक जो और एक लैंड है, वो लैंड एक है जिसका सर्वे नंबर 908 सर्वे नंबर जो यूसुफ नगर से आगे जाने के बाद रहता है, यूसुफ नगर के आगे जाने के बाद एक 908 सर्वे नंबर वो मुसलमान के खब्रस्तान के लिए अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो ऐलान ही रह गया, अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ. तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अल्लाहपुर डिवीजन में आने के लिए तैयार है. जो जमीन खब्रस्तान के लिए ऐलान किया गया था एमएलए साहब ने, वो जमीन खब्रस्तान के लिए अलॉट करने के बाद कुछ साजिशें हो रही है कि वो जमीन को कब्जा करने के लिए. कल तक जो ग्रेवयार्ड का बोर्ड था वो ग्रेवयार्ड निकालकर दूसरे बोर्ड लगा रहे, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई खब्रस्तान की लैंड अलग है और वो लैंड अलग है. ठीक है, मानता हूं उसको भी, लेकिन खब्रस्तान का लैंड कब देंगे? क्या जुबली हिल्स में जैसा इलेक्शन स्टंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान को और खब्रस्तान की जमीन को, उसी तरह आप भी इलेक्शन आने पर उसको यूज करेंगे? या फिर मुसलमान अवाम को अल्लाहपुर डिवीजन में कितने वोटर्स है और मुसलमान कितने वोटर्स है अलॉट कब करेंगे? आप लोग सोच लीजिए. मैं और एक बार अदबन गुजारिश करता हूं बंडी रमेश साहब से और एमएलए साहब से कि भाई आप कोशिश करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, इसको फिर से इलेक्शन स्टंट बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए, और खब्रस्तान के लिए ये जमीन का ऐलान ऑफिशियली कीजिए ताकि जुबली हिल्स का प्रॉब्लम अल्लाहपुर में नहीं आए.
ये J24 न्यूज से आपको गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, देखते ही रहिए J24 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। आज हम है जनाब माधवरम कृष्णाराव साहब, जो कि कुकटपल्ली हल्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है। जो मसला कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अल्लाहपुर डिवीजन के अल्लाहपुर एरिया का था, जो कि खबरस्तान के मामले में J24 न्यूज इससे पहले भी वीडियोस बता चुकी है। इसी सिलसिले में आज कृष्णाराव साहब से तमाम अल्लाहपुर के रहने वाले लोग और कॉरपोरेटर साहिबा और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब, गौसुद्दीन साहब और सबिहा मैडम साहब सब मिलकर यहाँ पर एमएलए साहब के ऑफिस के पास तशरीफ लाए। इसी सिलसिले में जनाब माधवरम कृष्णाराव साहब का क्या कहना है हम पूछेंगे। बोलिए सर, पिछले 2 इलेक्शन में आपसे वादा किया था कि एक इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में कृष्णाराव साहब से वादा किया था कि वो खबरस्तान के लिए यूसुफ नगर में एक जमीन देंगे जो कि कैतलापुर विलेज में आती है। उसी सिलसिले में साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये जमीन जरूर मैं जरूर खबरस्तान के लिए दूंगा। और पिछले बार जब J24 न्यूज ने क्वेश्चन की थी कि ऑफिशियली GHMC ने इस लैंड को HMWS को अलॉट की है स्टिल्ट के लिए, तो उसी सिलसिले में अभी हम बात करने के लिए आए हैं कृष्णाराव साहब से। बोलिए सर, आप क्या बोलते हैं, इस खबरस्तान के मसले को कैसा सॉल्व करेंगे? 1923లో మనం ప్రామిస్ చేసాం 1 ఎకర్ 20 గుంటాస్ 1 ఎకర్ 10 గుంటాస్ ఎంత ఉంటే అంత ముస్లింస్కి ఇస్తున్నాం. అది ఆల్రెడీ మనం ఇచ్చున్నాం, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏదైతే మనము ముస్లింలకు సఫ్దర్ నగర్ సంబంధించిన కానీ రాజీవ్ గాంధీ సంబంధించిన కానీ అల్లాపూర్ సంబంధించిన 3 కాలనీలు అందరూ కలిసి అల్లాపూర్ 116కు గ్రేవ్ గార్డ్ కావాలని ముస్లింలు మా సబియా గౌసుద్దీన్ కార్పొరేటర్ కోరిక మేరకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బస్తీ కోరిక మేరకు మనం అలాట్మెంట్ చేసాం. దాని పక్కకు హిందూ గ్రేవ్ గార్డ్ బ్రహ్మాండంగా యూసుఫ్ నగర్ హిందూ గ్రేవ్ గార్డ్ బ్రహ్మాండంగా, ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్లో STP ఉందని చెప్పేసి 2 దాకా పెండింగ్ అయింది. ఆల్రెడీ అలాట్ కాకపోయినా అది ఆల్రెడీ ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ కింద ఉంది. అది అఫీషియల్ అలాట్మెంట్ కాలేదు. అది అలాట్మెంట్ కానీ కాదు. ఎందుకు కాలేదు అంటే అది సిక్కం ల్యాండ్లో ఉంది. అఫీషియల్ అలాట్ చేయడానికి ఉండదు. గ్రేవ్ గార్డ్కు మనం కట్టించుకోవచ్చు అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం సూప్ నగర్ కట్టాం కాబట్టి మున్సిపల్ నిధులతో కట్టవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అలాట్మెంట్ అనేటటువంటి సిక్కం ల్యాండ్ దీనికి అలాట్మెంట్ ఉండదు. సుమారు ఏ రకంగా ఉందో హిందూ గ్రేవ్ గార్డ్ సేమ్ ఆ రకంగా దీనికి ఉంటుంది. 100కి 100 రూపాయలు నేను మాట ఇచ్చింది నిలబెట్టడం ఖచ్చితంగా చేస్తాం. అది STPకి సంబంధించినటువంటి వర్క్ నడుస్తుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే STP కూడా అల్లాపూర్కి సంబంధించినటువంటి మంచి కొరకే STP పెట్టాం. 50 ML, అది చిన్న ML కదా, అది 250 crores కడుతున్నాం. అది కంప్లీట్గా వచ్చింది. 15-20 కంప్లీట్ అవుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఖచ్చితంగా అది హిందూ ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్కి ఇచ్చే విధంగా ఏ రకంగా మత పెద్దలు మాట్లాడి ఏ రకంగా కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుని దానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. చూశారు కదా, మాధవరం కృష్ణారావు గారు కుకట్పల్లి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, కుకట్పల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే. రాబోయే రోజుల్లో నేను ఆల్రెడీ 2023 ఎలక్షన్ కన్నా ముందు అఫీషియల్ గా అది ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ అండ్ ఫంక్షన్ హాల్ కోసం అలాట్ చేశాను. కాకపోతే కొన్ని GHMC తప్పిదాలు వల్ల అవి ఆగిపోయిన వల్ల, కానీ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఫండ్ అలాట్ చేయకపోయినా CSR అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫండ్స్ తో అయినా నేను అక్కడ నిర్మాణం జరిపిస్తాను. ఏదైతే ఖబ్రస్తాన్ ల్యాండ్ ఉందో యూసుఫ్ నగర్ అవతల ఏదైతే ముస్లిం గ్రేవ్ యార్డ్ కోసం అలాట్ చేశారో, అఫీషియల్ గా అలాట్ కాలేదు, అఫీషియల్ గా నేను అలాట్ చేపిస్తా. ఏది ఏమైనా నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఖబరస్థాన్ కి ఆ ల్యాండ్ వస్తుంది. కాకపోతే నవంబర్ 1వ తారీఖు వరకు దానికి మా హ్యాండ్ ఓవర్ లో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అని కృష్ణారావు గారు చెప్తున్నారు. आज अल्लाहपुर डिवीजन के जो तमाम माइनॉरिटी भाई हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजीव गांधी नगर में जो मुस्लिम ग्रेवयार्ड है वो फिलअप हो चुका है. उसमें आगे तफसीन करने के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही है. उस सिलसिले में तमाम माइनॉरिटीज़ ने एक और कब्रस्तान की जगह के लिए सब लोगों ने MLA साहब से गुजरे हुए दिनों में पूछा था. तो उस सिलसिले में ऑलरेडी MLA साहब ने 2023 में उन्होंने वादा किया था कि अपने सफ्तानगर एरिया में रेलवे ट्रैक के बाजू में जो लैंड है वो खबरस्तान मुस्लिम्स के लिए अलॉट कर दिया जाएगा. उन्होंने पहले ही इस सिलसिले में वादा कर चुके थे. आज उसी सिलसिले में आज तमाम अल्लाहपुर डिवीजन के तमाम बस्तियों से हर कोई माइनॉरिटी भाई आज मिलने गए. आज भी MLA साहब की वही बात है जो उन्होंने जिस गुजरे हुए दिनों में जो वायदा किए थे, वही वादे पे आज भी MLA साहब बरकरार है कि आज वो जो प्लेस है, जो लैंड है, मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए ही अलॉट की
कर दी जाएंगी। पब्लिक से ये कहना है कि वादा जो है वादा ही रह जा रहा है, लेकिन काम अमल में नहीं आ रहा है। काम कब अमल में आएगा और कब्रिस्तान की जगह कब तक पब्लिक को मिलने की ख्वाहिश की जाएगी? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अल्लाहपुर डिवीज़न में हमारे पास 2 तालाबें हैं जिसकी एसटीपी का काम बाजू में कामनी चरव के बाजू में जो भी 115 डिवीज़न में उसका एसटीपी का वर्क चल रहा है। उस जी। सिलसिले में उन लोगों को क्रशर रखने के लिए जो मटेरियल एसटीपी के लिए जो ज़रूरत है कंक्रीट वगैरह, उस मटेरियल का जो है यहाँ पे ओपन लैंड होने की वजह से यहाँ पर उसका मटेरियल वगैरह रखा गया था। तो जैसा ही एसटीपी का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा प्लेस वेकेंट कर दिया जाएगा और ये पूरा जो क्रशर है वो सब निकाल कर या ये लैंड पूरा बहुत जल्द से जल्द ही मुस्लिम उसके लिए माइनॉरिटी कुछ डेडलाइन डेट ऐसा कुछ? उसके लिए ऑलरेडी हमारे एमएलए साहब ने बात किया है, 1 नवंबर तक वो पूरी लैंड वेकेंट कर दी जाएंगी। जी। अब 20 डेज बाकी है, आज तो ऑलरेडी 10 तारीख है जी। और नवंबर 1 तक वो ऑफिशियली भी हमारे एमएलए साहब ने कंप्लीटली देने का वायदा किया। तो साहब बोल रहे हैं यहाँ पे 100కి 100 రూపాయలు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాం बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको थोड़े लोगों को तेलुगु समझ में नहीं आती, मेरे को बोल रहे उर्दू में बोलो भाई, हिंदी में बोलो भाई बोल के। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुड मॉर्निंग तेलंगाना उर्दू में भी आता, लेकिन इसका ट्रांसलेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ। 100కి 100 రూపాయలు నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాను बोलते 100 को 100% मैं जो बात बोला वो बात पे ठहरता हूँ। मैं आपको खबरस्तान की जमीन देता हूँ बल्कि वादा किया था, मैं 100% देता हूँ बल्कि कृष्णाराव साहब बोल रहे। और ये भी बोल रहे कि भाई वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाता क्योंकि वो सिक्कम लैंड है, लेकिन बाजू में हिंदू ग्रेवयार्ड को मैं लैंड दिया तो उसी तरह आपको भी लैंड देता हूँ, लेकिन वही डिवीजन का सफदर नगर राजीव गांधी नगर का एसटीपी का वर्क चल रहा वहां पर, वो एसटीपी के वर्क का कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कुछ मटेरियल वहां पर रखा हुआ है। वो मटेरियल जाने के लिए 10-15 दिन का टाइम है। तो आप नवंबर 1 तारीख तक, वो लोग मेरे से वादा करें कि नवंबर 1 तारीख को हम आपके हैंडओवर में कर देंगे बोल के, नवंबर 1 तारीख तक मैं आपको ये लैंड दिलाने की कोशिश करता हूँ। जब तक आप लोग कमिटीज डाल लो, वो कब्रिस्तान की एक कमेटी डाल लो कि उसको कैसा मेंटेन किया जाए, उसके जिम्मेदारान लोग कौन कौन रहे, कैसा रहे, कौन से मस्जिद के इमाम को रखे, किसको बड़े लोग को जिम्मेदारान रहे। जितने भी कल बड़े लोग आए थे बस्ती के अल्लाहपुर डिवीजन के जिम्मेदारान लोग, तो सबसे उन्होंने बोले कि भाई आप लोग एक कमेटी डालो। मैं गुजारिश करता हूं अल्लाहपुर के जिम्मेदारान से और बड़े लोग से, जिम्मेदार लोग से, जो भी जिम्मेदारी लेते हैं, न्यू अल्लाहपुर हो, सेंट्रल अल्लाहपुर हो, राजीव गांधी नगर हो, सफदर नगर हो, यूसुफ नगर हो, पद्मावती नगर हो, मेराज नगर हो, अजीज नगर हो, केजीएन नगर हो, पंडित नेहरू नगर हो, पुत्तूर सीता नगर हो, राजीव गांधी नगर हो, जो भी हो, जो बस्ती से भी लोग आए थे, जैसा कि उन्होंने ऑर्डर्स दिया कि भाई कमेटी डाल लो, उसको आगे डेवलपमेंट कैसा करा जाए आप लोग सोच लो। कब्रिस्तान का काम आगे बढ़ने के लिए आप जल्द से जल्द, एक एमएलए हमको जब उतना वादा कर रहे हैं कि भाई मैं देता हूं, आप लोग कमिटीज डाल लो, तो इसमें अपनी खाइली होगी, अपनी देरी होगी, अपना लेट होगा। सो ये अपनी तरफ से लेट नहीं कहकर मैं सारे जिम्मेदारान से, समझता हूं कि मैं शायद सबसे छोटा हूं जिम्मेदारान लोगों से, माफी चाहता हूं अगर मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन मेरी अदबन गुजारिश है कि एक बड़ा आदमी जब एक एमएलए, एक मुकामी एमएलए, एक जिम्मेदार एमएलए हमको कहा कि भाई आप कमेटी डाल लीजिए, मैं काम करने के लिए रेडी हूं, तो हम भी काम करके बताए, उस कमेटी को डाल के बताए। मैं सोचता हूं और मैं गुजारिश करता हूं, मैं ख्वाहिश करता हूं कि कमेटी जल्द से जल्द बनेंगे। तो लेकिन जब तक खबरस्तान का काम नहीं हुआ, जब तक J24 न्यूज बात करते ही रहेगी, वीडियोस बताते ही रहेगी, लड़ते भी रहेंगी। जैसा कि मैंने कहा है कि पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा एजेंडा है, उस एजेंडे पे मैं चलते ही रहूंगा जब तक कि अल्लाहपुर का खबरस्तान का लैंड अलॉट नहीं हुआ, जब तक J24 न्यूज कोशिश करते ही रहेंगी, पूछते ही रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज गुड मॉर्निंग तेलंगाना विद जिलानी में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि J24 न्यूज एक आवाज उठाई थी कि अल्लाहपुर के खबरस्तान के इशू पर, अल्लाहपुर के खबरस्तान के इशू पर, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है राजीव गांधी नगर में। अल्लाहपुर के लोग के लिए एक राजीव गांधी नगर में खबरस्तान है जो मुकम्मल उसकी जगह खत्म होने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी हमारे इलाके के एमएलए जनाब माधवरम कृष्णाराव कुकटपल्ली एमएलए ने एक जबान दी थी कि 2023 के इलेक्शन में यूसुफ नगर के आगे जो एक रास्ता है जो कि कैतलापुर विलेज के जुरिस्डिक्शन में आता है, जो सर्वे नंबर 908 कुछ है उसका, वो सर्वे नंबर में थोड़ी लैंड अलॉट की जाएंगी मुसलमान के खबरस्तान के लिए, जिसके बाजू में ऑलरेडी हिंदू खबरस्तान भी मौजूद है। तो इसके लिए
एक काम रुक गया था, मुसलसल J24 न्यूज, इसके लिए न्यूज बताए आप लोग सब देखे। उसके बाद माथुराम कृष्णा राव साहब से भी मिले। कृष्णा राव साहब ने वादा भी किया था कि नवंबर 1 तारीख तक शायद इंशाल्लाह ये जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया जाएंगी। तो अभी 2 दिन पहले से मैं एक लोगों से कॉल्स भी आ रहे थे, मैं भी देखने के लिए गया था, वहां पर देखा कि भाई वो कब्रिस्तान के लिए जो लैंड अलॉट की गई है, अलॉट मतलब जो कहा गया है कि ये लैंड दिया जाएगा कब्रिस्तान के लिए, उसमें कुछ लोग अपना बोर्ड लगाकर दिस ये लैंड बिलोंग्स टू सो एंड सो बोलकर एक नेम डालकर ये लैंड मेरी है बोल के एक मोबाइल नंबर और नाम भी लगाया गया उसमें। सो ये है वो फोटो, मैं बता दूं आपको, ये लैंड है वो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, जूम करके बताइए, कुकटपल्ली अल्लाहपुर ग्रेवयार्ड सर्वे नंबर 908 बोल के एक ग्रेवयार्ड का बोर्ड है यहाँ पे। ये अच्छी सी, ये रात में लिए सो फोटो है शायद, सो इसलिए सही नहीं दिखी। सो अच्छी वाली फोटो भी है मेरे पास, लेकिन अभी मौजूद नहीं है इसमें स्क्रीन पे। ये ग्रेवयार्ड का बोर्ड था यहाँ पे, 908 सर्वे नंबर डाल के ग्रेवयार्ड का बोर्ड डाले। फिर अब ये लैंड का बोर्ड लगे हुआ है वहां पे, ये नाम से, दिस लैंड बिलोंग टू पार्ट ऑफ सर्वे नंबर 994, पार्ट ऑफ सर्वे नंबर 994 सर्वे नंबर का एक हिस्सा है ये प्रॉपर्टी जी मल्लेश यादव और अदर्स की है। एंक्रोचमेंट्स और डिसमेटल में फोर्स यू टू प्रोसिक्यूटेड, अगर आप एंक्रोचमेंट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोसिक्यूशन हुआ जाएगा। और ये नंबर दिया गया है इसमें 9030337927 कुछ नंबर है ये बोर्ड लगा है। उसके बाद में शायद वहां पे क्लीन भी करने की कोशिश करे लैंड, वो लेवल करने की भी कोशिश करे, और लेवल भी होगा, देखो ऐसा होगा। तो लोगों का ये कहना है, कुछ लोग का, कि इधर की जमीन, ये जो ब्लू शेड दिख रहा ना आपको, ये ब्लू शेड के बाजू की जमीन कब्रिस्तान को दी गई बोल के बोल रहे। ये देखो, ये इसके बाजू की ब्लू शेड की जमीन है, वो कब्रिस्तान को दिए, वो सर्वे नंबर 908 में है बोल के बोल रहे। मैं ये नंबर पे कल कांटेक्ट भी करके बात करा, तो नहीं भाई ये मेरी जमीन है, 908 सर्वे नंबर के बाजू 994 सर्वे नंबर है। और से सुनो आप मेरी बात, 908 सर्वे नंबर है कहते, 908 सर्वे नंबर के बाजू में 994 सर्वे नंबर आया, ये जमीन मेरी है बोल के बोल रहे हो, जिससे मैं बात करा। तो कैलकुलेशन एक बता तो मैं मुंह जबानी नहीं बोल रहा हूँ। 990 क्या है ये 4 माइनस 908 कर लेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 908 सर्वे नंबर बोल रहे हैं, ये देखो 908 सर्वे नंबर बोल रहे हैं। 994 माइनस 908, तो क्या रिजल्ट आया, 806। और ये भी बता रहा हूं आपको स्क्रीन में, ये 908 है। कल जो बोर्ड 908 का था, 2 दिन पहले जो बोर्ड था 908 का, अब 994 हो गया, वैसा हो जाता अल्लाहपुर में। समझ रहे ना आप मेरी बात, 994 और 908 को 86 का डिफरेंस है। तो 86 सर्वे नंबर को छोड़ के 904 के बाजू में 9 ये डाल दिए गए थे, 994 डाल दिए गए थे, 908 के बाजू 994 डाल दिए गए थे। अब मैं इनको पूछा ऐसा होता क्या भाई मल्लेश भाई बोल के पूछा हूँ, मल्लेश के नंबर पे कॉल करे तो कोई और मेरे को वापस कॉल करे, कॉल करके जरा डराने धमकाने की भी बातें कर रहे थे। मैं पूछा ऐसा होता क्या भाई, बोले तो 994 के बाद 908 के बाद 994 आता कैसा नहीं आता, तेलंगाना में बहुत जगह आता बोल के बोले उन्होंने। तो मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करा कि लीगल मसला है, और उन्होंने बोल रहे मैं बहुत लोगों से सेटलमेंट कर लिया इसका, मैं सब जगह गया, मैं एमआरओ से बात कर लिया, आरटीओ से बात कर लिया, और दीगर लोगों से भी बात कर लिया, और थोड़े लोगों के नाम भी बोले उन्होंने मेरे को, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ स्क्रीन में। मैं इन लोगों से भी बात कर लिया, उन लोगों से भी बात कर लिया बोल के बोल रहे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 994 के बाद 908 आता क्या भाई बोल के पूछा। वो जो नंबर पे फोन आया मेरे को, वो फोन मैं करा तो वो लोग नहीं उठाए, फिर वो लोग पलटा के करे कुछ और नंबर से, तो मैं बात करा तो 994 के बाद 908 के बाद 994 आता क्या बोले, तो आता तेलंगाना में बहुत जगह आता है, ऐसा क्या बोलना चाह रहे आप बोल के ऐसा पूछे मेरे को। मैं नाजरीन ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाहपुर के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे या फिर दूसरे इलाके से भी देख रहे, ये लैंड 908 सर्वे नंबर ऑलरेडी सिक्कम लैंड है बोल के परसों भी एमएलए साहब बोले, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है 908 सर्वे नंबर। 908 सर्वे नंबर ऑन द रिकॉर्ड कितना है क्या है मेरे को मालूम है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड विथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्द बताता हूँ। तो फिर 908 सर्वे नंबर
सिक्कम है बोल के बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे एविडेंसेस है, तरह तरह के एविडेंसेस है, मैं बताता हूँ। और बजबानी एमएलए साहब की बजबानी भी 908 सिक्कम लैंड है, ये ऑफिशियल इसको अलॉट किया नहीं जाता बोल के बोले, ऑफिशियली कब्रिस्तान को अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि सिक्कम लैंड है ये बोल के बोले। ठीक है, वो भी ओके। तो फिर 908 सर्वे नंबर के बाद सही में 994 आ गया क्या? 994 दूसरों का है क्या? 908 के बाद 994 पक्का है क्या? वो सही में लैंड दूसरों की है क्या? फिर इसको सर्वे कराना पड़ता। फिर कई को हाइड्रा वाले यहाँ पे नहीं आ रहे, सिक्कम लैंड है तो भी कई को रंगनाथ साहब इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, ये समझ में नहीं आ। अगर से कंप्लेंट नहीं गया तो इसके ऊपर किसकी खाइली है? क्यों सर्वे नंबर के ऊपर कंप्लेंट नहीं गया? क्यों इंक्रोचमेंट के ऊपर कंप्लेंट नहीं गया? अगर नहीं गया हकीकत में इसलिए हाइड्रा के लोग अप्रोच नहीं हुए तो मैं कंप्लेंट करता हूँ। लेकिन मैं ये सुना कि कुछ लोग हाइड्रा को कंप्लेंट किए लेकिन वहां का उसको एक्शन लेने के लिए हाइड्रा वहां पर मौजूद नहीं हुई। बट मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि भाई 908 सर्वे नंबर के बाजुक 994 आया क्या? 994 आया तो 994 दूसरों की है क्या पक्का? ये पूरे डिटेल्स होना मेरे को। एक बार कब्रिस्तान को लैंड देते बोले, फिर वो सिक्कम लैंड है बोले, फिर सिक्कम लैंड कब्रिस्तान को देने के लिए राजी नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता तो किसी और की जमीन कैसा हो सकती? कोई और उस पे कैसा ग्रैब कर सकता? ये मेरा सवाल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि J24 न्यूज, मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, J24 न्यूज जब तक अल्लाहपुर के कब्रिस्तान की लैंड नहीं आई, जब तक J24 न्यूज मुसलसल कोशिश करते ही रहेंगी, आते ही रहेंगी, बताते ही रहेंगी ऐसे न्यूज उस लैंड के बारे में। क्योंकि मेरा खुला कहना है कि जब भाई सिक्कम लैंड है, उसके सारे एविडेंसेस है, बजबानी बहुत सारे लोग बोले, तो फिर दूसरों की कैसा हो सकती? अगर है हकीकत तो 994 908 के बाजू कैसा आता आया? तो फिर सर्वे करा के उसको ऑथेंटिक रिपोर्ट बताओ। मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट के सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर यही स्क्रीन पे आऊंगा, देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज। जिस जमीन को कब्रिस्तान के लिए अनाउंस किया गया है, उस जमीन को कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसमें जमीन फिर से कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एमएलए साहब की बजुबानी उसको अनाउंस किया था। मेरी बात कॉरपोरेटर साहिबा के शोहर साहब जनाब गौसुद्दीन साहब से भी मेरी बात हुई कि वो बोले कि मैं इन्हें उसको नहीं होने दूंगा। तो मैं ये भी सुना कि गौस भाई ने उस स्पॉट पर जाकर उस काम को रुकवाया। तो मैं और एक बार आप सबसे इत्तला करता हूं कि इस जमीन को कब्जे से रोकिए और कब्रिस्तान के लिए आने की कोशिश करिए। और कब्रिस्तान के लिए आ गई तो बहुत अच्छी जमीन, बहुत अच्छा काम होगा। जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूं और कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी हाइड्रा हो, जीएचएमसी हो, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, जो भी है, इसको ऑथराइज जो भी अनऑथराइज कब्जा करने की कोशिश करे, इसको रोक कर अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के काम में ये जमीन आने के लिए कोशिश करिए। मैं ज्यादा नहीं बात करते हुए वीडियो को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जमीन 2023 के इलेक्शन में एमएलए इज्जतदार हमारे एमएलए माधवरम कृष्णाराव साहब ने ये जमीन मैं कब्रिस्तान को देता हूँ बोलकर अनाउंस किए थे। और मैं भी महबूब फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम हुआ तो मैं भी एमएलए साहब के सामने एमएलए साहब को पूछा था, एमएलए साहब उसके लिए ओके बोले। उससे पहले ही बोले थे वो ना, फिर बहरी महफिल में ठीक है मैं वो जमीन दे रहा हूँ कब्रिस्तान के लिए बोल के बोल दिया। तो उसके बाद भी उन्होंने बात पे अटल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ बोल के। तो उसके बाद वो जमीन जो है, जमीन के बाजू में जमीन है, तो वो जमीन कुछ लोग कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे, एक बोर्ड लगा के, ये बोर्ड, ये वीडियो इससे पहले भी बताया। बोलना ये है कि भाई क्या बोल रहे, वो जमीन जो है 908 सर्वे नंबर में आती, ये 994 सर्वे नंबर में है, वो जमीन को, ये जमीन को कोई रिलेशन नहीं है बोल रहे। लेकिन हकीकती जो लोग बोल रहे वहां पे, नहीं भाई ये जमीन और वो जमीन एक ही है, ये जमीन होना बोल के कब्जा कर रहे बोल के। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एमआरओ से भी बात हुई मेरी, एमआरओ साहब क्या बोल रहे, नहीं भाई वो जमीन क्लीन है, 994 जमीन है, वो 908 में नहीं आती बोल रहे। तो ठीक है, अगर नहीं आ रही जमीन, 994 में नहीं आ रही, 908 में नहीं आ रही जमीन, तो मैं एमएलए साहब से
रिक्वेस्ट करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको ऑफिशियली एक लेटर भेज हमारे लोग आके देंगे या मैं आके दूंगा आपको। तो मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं अगर नहीं आ सका तो मेरी तरफ से कोई आएंगे, लेकिन J24 न्यूज से आपको लेटर आएगा कि भाई ये जमीन को सर्वे करेंगे अपन, सर्वे आप कराइए, हम रिक्वेस्ट देंगे, ऑफिशियल सर्वे करेंगे, बस्ती के लोग भी ठहरेंगे, जिम्मेदार हम लोग ठहरेंगे, उसमें सर्वे कराएंगे। सर्वे करने के बाद अगर जमीन उधर निकली तो वेरी गुड, अगर हमारे को है तो वेरी वेरी गुड। इसमें लड़ाई की पंचायत की कोई जरूरत नहीं है। आगे वाले क्या बोल रहे, भाई मैं जमीन खरीदा, ये जमीन मेरी है बोल रहे, तो डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास जो है वैसा नहीं है। 2023 में इलेक्शन होने से पहले कुछ लोग ये जमीन पे गए, तो ये जमीन सिक्कम लैंड है बोल के वो लोगों के ऊपर केस बुक हुआ, तो वही जमीन पे आज बोर्ड लगाए तो केस बुक नहीं हो रहा, और लोगों की जमीन है बोल रहे। जब सिक्कम लैंड कैसा थी, आज ये लोगों की कैसा हो गई। चाहे वो लोग के ऊपर जो केस जिसके ऊपर बुक हुआ वो मेरे दोस्त हो या दोस्त ना हो, मेरे चहीते हो ना हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लीगलिटीज में बात कर रहा हूँ कि जब वो जमीन सिक्कम लैंड हुई, लोगों के ऊपर केस कैसा बुक होता, वो लोग जेल को कैसा जाते, और अब वो जमीन जी मल्लेश यादव की कैसा होती। ये पब्लिक का सवाल है, मेरा सवाल नहीं होता, मेरा इंटरफियरेंस नहीं है इसमें, ये पब्लिक का सवाल है। जो लोग सामने आके नहीं बोल सक रहे उनकी तरफ से मैं आके सामने बोल रहा हूँ, जमीन पे भी आके बोलता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेरी बात MRO साहब से हुई, MRO साहब क्या बोल रहे हैं, 994 है वो बोल के बोल रहे हैं, तो ठीक है 994 कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो। 994 सर्वे नंबर कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो। वो सर्वे नंबर कहां से कहां तक है, बाउंड्रीज डिक्लेयर कर दो, बात खत्म, किस्सा खत्म, खेल खत्म, कोई भी नहीं आते बीच में। तो 994 के बारे में सर्वे नंबर के लिए सर्वे करेंगे, उसके बाद अगर उनकी जमीन है तो छोड़ देंगे उसको, नहीं है तो जब तक J24 न्यूज कोशिश करते ही रहेंगी, मुसलसल पूछते ही रहेंगे, आपसे सवाल करते ही रहेंगी। मेरा सवाल एक ही है, जब सिक्कम लैंड थी वो, तो आज क्यों नहीं है? ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मोदी साहब चेंज करते कि बोल के अपन परेशान हो रहे, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज नहीं हुआ, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या फिर जब गलत हुआ या फिर अब गलत हो रहा, या जो MRO साहब रिपोर्ट दिए कि ये सिक्कम लैंड है बोल के वो तो गलत होना, या नहीं तो अब जो बोर्ड लगा ये तो गलत होना, दोनों में गलत क्या है यही पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं। लेकिन जब तक जमीन कब्रिस्तान के लिए नहीं आएगी, जब तक J24 न्यूज कोशिश करते ही रहेंगी, लड़ते ही रहेंगी। ये मत समझो कि भाई क्या है वे J24 न्यूज में बोलते कि खाली कब्रिस्तान के बारे में बता रहे, बल्कि खाली कब्रिस्तान के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं हर चीज बता रहा हूँ, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान को आए तक मेरा J24 न्यूज का मकसद है। ये जमीन मेरे लिए नहीं है, हम सभी के लिए है, हमारे खानदान, दोस्त, अहबाब और हमारे घर वालों के लिए, आखिरी सफर के बाद आखिरी ठिकाने के लिए जमीन है। समझ रहे ना भाई मेरा साथ दीजिए। मैं ये सुना कि 1 तारीख को जमीन तो देते बोलकर बोले, ये भी मैं वीडियो में बताया, उम्मीद थी मुझे, लेकिन 1 तारीख से मेरी सर्जरी होना इससे पहले, उसके बाद में मैं आपके सामने मुखातिब हो नहीं सका। तो आज मैं ये सुना कि सफदर नगर और राजीव गांधी नगर और अल्लाहपुर डिवीज़न के मुकामी जिम्मेदारान लोग, कुछ लोग ज़मीन पर गए, अल्लाहपुर कब्रिस्तान को जो ज़मीन देने का वादा किया था उस ज़मीन को वहाँ पर देखने के लिए गए। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो भी वहाँ पर इक्विपमेंट रखा गया है, मटेरियल रखा गया, उसको अभी खाली नहीं करे, कब खाली करते ये सवाल करने के लिए गए, और बोर्ड्स भी वहाँ पर फिक्स करे। मैं वीडियोस देखा अभी। तो उसके बाद अल्लाहपुर के कॉरपोरेटर सबिहा बेगम साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए और वो मैनेजमेंट से बात हुई, मैं वीडियो मंगाया और वीडियो देखा। तो उसमें जो मैनेजमेंट वहाँ पर है, वो लोग कह रहे हैं कि नवंबर की 20 तारीख को ज़मीन हम खाली करेंगे, आपके हैंड ओवर करेंगे। और अल्लाहपुर के कॉरपोरेटर साहिबा ने उन लोग से कहा कि 5 दिन में इस ज़मीन खाली करने के लिए डिमांड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि 25 तारीख अक्टूबर से नवंबर 1 तारीख चले गई, नवंबर 1 तारीख से आज 5 तारीख है, 5 तारीख चले गई। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं वो लोग और 20 तारीख तक का वक्त मांगे, लेकिन कॉरपोरेटर साहिबा ने 5 दिन का वक्त दिया उनको। मैं वीडियो में देखा। तो आज से अगर हिसाब लगाएंगे तो नवंबर की 11 या 10 तारीख को ज़मीन, 5 दिन का वक्त लगाएंगे तो 10 या 11 तारीख को एक तारीख आएंगी। तो
तेलंगाना स्टेट भर में सबको मालूम है कि नवंबर 11 तारीख को कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट के इलेक्शन के जैसा होने वाला जुबलील्स का बाई इलेक्शन है, जिसका रिजल्ट 14 तारीख को है। कॉरपोरेटर साहिबा से और एमएलए साहब से अदबन गुजारिश है, यह चीज़ को वो चीज़ से ना जोड़िए। और भले आप दोनों के ऊपर भी मुझे मुकम्मल भरोसा है कि आप अल्लाहपुर की आवाम के लिए खिदमत गुजार है, और तेलंगाना में एक सेक्युलर एमएलए कोई है, माइनॉरिटी के मोहब्बत में जो एमएलए है, तो वो मेरी नज़र में माधवरम कृष्णाराव साहब है। इनकी जितने भी तारीफ करो कम है, लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एमएलए साहब, इसको ज़्यादा देर नहीं करके जल्द से जल्द ज़मीन अगर आप चाहेंगे तो 5 दिन नहीं 1 दिन में दे सकते हैं, आपके ऊपर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन लेफ्ट में राइट में थोड़े लोग डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो वो आप जानिए, पहचानिए, और ज़मीन मुसलमान को खबरस्तान के लिए आने के लिए मुकम्मल कोशिश करिए, और फूलों से इस्तकबाल करेंगे आपका अल्लाहपुर की आवाम अगर ये ज़मीन आ जाएंगी खबरस्तान के लिए। तो आप एक सेकुलर एमएलए है, मुसलमान के चहीते एमएलए है, तो आप चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूँ 5 दिन नहीं 1 दिन में ज़मीन आ जाती। मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर ये ज़मीन खबरस्तान की ज़मीन में कोई डिस्टर्ब होगा, अगर ये नहीं आएंगे, कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो आने वाले अल्लाहपुर के कॉरपोरेशन इलेक्शन में किसी की हार की और किसी की जीत की वजह यही ज़मीन बन सकती। सोचिए, समझिए और मेरी गुजारिश को मानिए, देखते ही रहिए J24 न्यूज़। ఇది ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కాదు, మాధవరావు కిషన్రావు ల్యాండ్ కాదు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఖచ్చితంగా గ్రేవ్ గార్డ్ కేటాయించమని అన్ని పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళకి దాన్ని మనం మాట ఇచ్చాం. వీళ్ళు నెరవేర్చాం. వీళ్ళు నెరవేర్చడం కాదు, దీని అడ్డంకులు కూడా వేస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి ఉండదు. సాదా సీదాగా ఈ రోజు మేము వచ్చాం, పూజలు చేశాం, నమోదు వాడాం, కాంపౌండ్ కట్టాం. ఇది యథావిధిగా కొనసాగించేటట్టుగా అందరూ సహకరించాం. सो एमएलए माधवरम कृष्णाराव साहब के ओन फंड्स से इसको यहाँ पर जो भी आज फेंसिंग किया गया है, और अल्लाहपुर कॉरपोरेटर जनाब गौसुद्दीन साहब और हमारे रहीम भाई, सारे आवाम के दरमियान में आकर ये कहा जा रहा है कि मैं मेरे फंड से इसको रेडी करने के लिए तैयार हूँ। आगे और कुछ भी माइनॉरिटीज के लिए अगर जरूरत है तो मैं हमेशा आपके लिए राजी हूँ आना। अल्लाहपुर के लोग खबरस्तान के वास्ते इतने दिन कोशिश करें, और उसका आप इफ्तिताह भी जो है संडे के दिन, पिछले इतवार के दिन करे थे, लेकिन कुछ साजिश है उसको रोकने के लिए कोशिश करिए। इसके ऊपर क्या कहना है आपको? ఆల్రెడీ గ్రేవ్ గార్డ్కి ఇచ్చేసాం, सर ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్కి ఇచ్చేసాం. దాంట్లో డౌట్ లేదు, ఎవరు అడ్డం వచ్చినా ఆగేం లేదు. ఎవరన్నా వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకోవాలి, మా గవర్నమెంట్ ఉంది మేమే చేసుకోవాలనుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు. నాకు కావాల్సింది గ్రేవ్ గార్డ్ కావాలి, నా పేరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పెట్టుకోమని నాకేం బాధ లేదు. నాకు కావాల్సింది ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ కావాలి. నిన్న అఫీషియల్ గా వచ్చిన నేనేమంటున్నా, ఆ గ్రేవ్ గార్డ్ అనేది నా పేరు కూడా అవసరం లేదు. మీ కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి పేరు కూడా పెట్టుకోండి, నాకు ఏం బాధ. నాకు కావాల్సింది ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్. ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్ ఇవ్వకుండా వేరేలోకి ఇస్తే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి ఉండదు. నిన్న ఏదైతే ఒక అఫీషియల్ గా వచ్చిన న్యూస్ ఏమంటే అన్న, కొంతమంది వేరే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ కానీ అని వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చి ఈ ల్యాండ్ మాకు చెందినది అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ మా వాళ్ళు ఉన్నా కూడా, ముస్లిం సోదరు ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఉండొద్దు, మీరు వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే కేసులు బుక్ చేస్తామని. అది ఎవరు చేస్తున్నారని మా ఇమాంలకు, మోదర్లకు, అల్లాపూర్ ముస్లింలకు బాగా తెలవాలి. వాటర్ వర్క్స్ అనేది మనకు గ్రేవ్ గార్డ్ తర్వాత వాళ్ళు సిల్ట్ ఇచ్చారు. ఇంకోటి సిల్ట్ లో కూడా మన సర్వే నంబర్ లేదు, చూసి రోజు లేదు, సర్వే నంబర్ లేదు. ఇదే ప్లేసెస్ మీద కుక్కడపల్లి మా ఇంటి దగ్గర కూడా సిల్ట్ ఇచ్చారు. మన వర్క్ నడుస్తుంది, సెంట్ క్యాల్ చేయకుండా. 100కి 100 రూపాయలు ఎవడు అడ్డం పడ్డా ఎవడొచ్చినా మేము గ్రేవ్ గార్డ్ కాంపౌండ్ కట్టించినాం. దాని మీద ఏలు పడ్డది అంటే మాత్రం మరి కాదు ఉండదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. నేనేమంటున్నా, నా పేరు పెట్టకండి, కృష్ణారావు చేయలేడు, మీరే చేసినండి, కొబ్బరికాయ కొట్టుకోండి, దావత్ చేయండి, ఏమని వేసుకోండి, మీరే పేరు పెట్టుకోండి. మీరు రేవంత్ రెడ్డి పేరు పెట్టుకుంటారా, మీ సోనియా గాంధీ పేరు పెట్టుకోండి. నాకు కావాల్సింది ముస్లిం గ్రేవ్ గార్డ్, అది నేను కోరుకుంటున్నాను.